Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? I hope you all are fine. Students, welcome to the lesson number 2 of unit number 5 from Iqra Applied Grammar 1. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था. एंड व्हाट इज द टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 5? Adjectives. Very nice. And what are adjectives? Adjectives are describing words. Very nice. Adjectives are describing words mean? Yes, adjectives describe nouns or pronouns, and nouns can be a person, a place or a thing. Clear, students? And yesterday we did first 2 segments of unit number 5. Today we are going to attend segment number 3, which is practice. So let's start with today's lesson. Okay, my dear students, we are here with the segment number 3 of unit number 5, which is practice. And you can see a word bank given here. But before starting our work, means before the discussion of word bank, we will discuss the question given here. Look at the picture and complete the physical description of the child with the help of the words given in the box. Students, do you know what is the meaning of physical description? What is the meaning of physical description, beta? Physical description is related to our physique. And physique में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं? We can discuss body shape, we can discuss hair, face, eyes, nose and complexion. This is our physical description. Okay, means we can discuss these things in physical description. Okay, students, now what we have to do, we have to look at the picture. There is a picture given here, picture of a boy given here. थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ मैं आपको. And complete the physical description of child with the help of the words given in the box. अगर हमें फिजिकली डिस्क्राइब करना है किसी को भी, तो हमें ये विकेबलरी यूज़ करनी पड़ेगी. एंड दिस विकेबलरी इज एडजेक्टिव्स. इस विकेबलरी में जो भी वर्ड्स गिवन है, दीज ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ना, तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. ये बॉडी को डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड फर्स्ट लाइन में. सेकंड में जो वर्ड्स गिवन हैं वो हेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. देन फेस डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आईज डिस्क्रिप्शन, नोज डिस्क्रिप्शन एंड कॉम्प्लेक्शन डिस्क्रिप्शन. ओके बेटा, सो 1 बाय 1 हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको इनकी मीनिंग्स अच्छे से समझ आ जाएं और आप इनको यूज़ कर सकें. ओके बेटा, अब फिजिकल डिस्क्रिप्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बॉडी शेप. बॉडी शेप किस तरह की हो सकती है? इट कैन बी स्मार्ट, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग, टॉल, शॉर्ट, स्लिम, फैट. दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी इजी. ओके, स्लिम मीन स्मार्ट, ठीक है. स्ट्रॉन्ग मीन ताकतवर, टॉल मीन टॉल हाइटेड, फैट हेल्दी को बोल सकते हैं हम, सेहतमंद. ओके, नेक्स्ट हेयर. Hair can be curly, straight, silky. Okay, beta. Curly hairs having curls. Okay, straight, silky. You know very well. Then face. Face can be round, skinny, long. Round mean round face. Goal. Skinny mean weak. Bony face भी आप कह सकते हैं. Skinny face भी बहुत कमज़ोर चेहरा. And long face. Okay, eyes can be clean, beady, hollow. Clean eyes, you know, साफ सुथरी आइज़ को हम बोल सकते हैं. beady eyes जो इस पिक्चर में गिवन है वो आपको मैं भी दिखा दूंगी. hollow eyes जो बहुत अंदर की तरफ गई होती हैं उनको हम hollow eyes बोलते हैं. hollow. Okay, nose can be big, small, pointed. Okay, small nose हो सकता है, big भी हो सकता है, pointed भी होता है, तीखा nose जिसको हम बोल सकते हैं, बारीक सा. Okay, beta. Complexion can be dark, fair and brown. Dark mean very dark complexion, fair and brown. These are 3 types of complexion that you can mention. Color complexion we are discussing. Okay.
ओके, अब हमने ये मीनिंग्स हमें पता चल के इन सब एडजेक्टिव्स के, ये एडजेक्टिव हम सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। आपने अच्छे से याद रखना है, दीज एडजेक्टिव्स आर फॉर फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टुवर्ड्स आवर प्रैक्टिस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, now you will look at the picture of this boy. Side by side you will look at the word bank and we will complete the sentences given here. In first sentence we will discuss the body shape. He is dash. Look at the body shape of this boy beta. He is, अब इसमें से कौन सा वर्ड सूट करेगा? स्मार्ट भी कर सकते हैं, स्लिम भी कर सकते हैं। He is smart, he is slim, ठीक है। नेक्स्ट वन, His hair is straight. वैसे तो बाल हमें अच्छे से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन थोड़े थोड़े हमें नज़र आ रहे हैं। We can say straight. His hair is straight. And why are we using his? हमने possessive adjective पढ़ा था ना, he का his, he, his, she, her. Okay my dear students, तो possessive adjective हम pronoun के according करेंगे, जो हमारे पास pronoun है उसके according possessive adjective करेंगे, he, his. एंड हेयर इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। कभी भी हम हेयर्स नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बालों की बात करेंगे तब भी हेयर, वन हेयर। हीज हेयर इज़ स्ट्रेट, स्ट्रेट लिखेंगे, ओके। हीज फेस इज़, यू कैन लुक एट द फेस ऑफ द बॉय एंड चूज द वोकैबुलरी फ्रॉम हियर। हिज फेस इज़ राउंड, यस। हीज आईज आर, लुक एट द आईज बेटा। His eyes are beady. Beady mean गोल गोल जो आईज होती हैं हम उनको beady eyes बोलते हैं, बीड्स की तरह, जैसे बीड्स होते हैं ना, बीड्स। His eyes are beady. His nose is, look at the nose, small. Okay, his nose is small. His complexion is, look at the complexion beta. His complexion is brown. Clear students? इस तरह से हमने इस बॉय की पिक्चर को देखते हुए वर्ड बैंक में से सूटेबल एडजेक्टिव लेने हैं और फिजिकली डिस्क्राइब करना है इस पिक्चर को। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, इट्स द बी एक्टिविटी ऑफ प्रैक्टिस एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर, डिस्क्राइब योर ब्रदर फिजिकली टेकिंग हेल्प फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। जैसे हमने एक्टिविटी ए में इस बॉय को डिस्क्राइब किया है बाय लुकिंग एट हिज पिक्चर एंड बाय यूजिंग द गिवन वोकैबुलरी, इसी तरह से अब हम अपने ब्रदर को फिजिकली डिस्क्राइब करेंगे। वी विल टेल द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर ब्रदर। मैं अपने भाई की फिजिकल डिस्क्रिप्शन मेंशन की है, आपने अपने भाई को फिजिकली डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, हिज हेयर इज कर्ली, हिज फेस इज राउंड, his eyes are clean, his nose is big, his complexion is fair, his cheeks are pink. One line was extra, तो आप कोई एक एक्स्ट्रा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने अपने भाई को फिजिकली डिस्क्राइब करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर विथ एक्टिविटी सी ऑफ प्रैक्टिस। And what we have to do here, describe your friend by completing the sentences. You may take help from the words given in the box. अब हमने अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है, लेकिन अब हमने फ्रेंड को फिजिकली डिस्क्राइब नहीं करना। हमने फ्रेंड की फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं बतानी, हमने कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन बतानी है। कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन मीन, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में हम वो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे जिन क्वालिटीज़ को हम टच नहीं कर सकते, ना ही हम उनको देख सकते हैं। वी कैन ओनली फील। ओके, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में जो हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे थे उनको हम टच कर सकते थे ना, वी कैन टच आईज, वी कैन टच नोज, वी कैन टच हेयर। लेकिन कैरेक्टर को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इट मीन्स हम जो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, वी कैन नॉट टच देम और वी कैन नॉट सी देम, वी कैन ओनली फील देम। ओके, जैसे कि अब ये वर्ड बैंक जो गिवन है इसको हम कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। सो वर्ड बैंक डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट बाद मेरे साथ रीडिंग करेंगे। ऑनेस्ट, फेथफुल,
funny, hardworking, calm, talkative, clever, wise, intelligent, shy, friendly, lazy, rude, generous, brave, serious, crazy, nervous, selfish and naughty। अब इनमें से कोई भी ऐसा एडजेक्टिव नहीं है जो हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें। ये सब एडजेक्टिव हम करेक्टेड डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? करेक्टेड डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ऑनेस्ट मीन ईमानदार, वेरी नाइस। फेथफुल, वफादार, फेथफुल फ्रेंड हो सकते हैं। फनी, हैविंग फनी नेचर, फन करने वाला, मजाक करने वाला। हार्ड वर्किंग, मेहनती। काम, काम, पुरसकून। टॉकेटिव, अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला या करने वाली। क्लेवर, शार्प, वेरी नाइस। क्लेवर मीन शार्प, तेज। चालाक भी बोल सकते हैं। वाइज, वाइज अक्लमंद। इंटेलिजेंट, ज़हीन। शाय, शर्मीला, यस। फ्रेंडली, हैविंग फ्रेंडली नेचर, दोस्ताना, रिलैक्स, इजी नेचर जिसको हम कह सकते हैं। लेजी मीन द ऑपोजिट ऑफ लेजी इज एक्टिव, यू कैन गेस द मीनिंग लेजी। रूड मीन having bad nature, you can say bad akhlaq, like this. Generous mean, yes beta, means you can say sakhi, khule dil wala. Brave mean bahadur, yes. Serious, having serious nature. Crazy, crazy mean you can say my friend is crazy, means she is very crazy, means she takes things seriously, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पसंद करना या किसी भी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पागलों की तरह किसी चीज़ को पसंद करना, like this, crazy. Nervous, confused, confused, okay, like हम पेपर्स में नर्वस होते हैं ना. Selfish, yes, अपनी ही परवाह करने वाला, खुदगर्ज कह सकते हैं. Naughty, नॉटी मीन शरारती, यस. अब ये वर्ड्स के हमें मीनिंग्स पता हैं. अब हम अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ ब्लैंक्स में फिल करेंगे और हमें क्या करना है आप देख सकते हैं. हमें एंड नज़र आ रहा है और हमने डिस्कस किया था जब भी हम टू क्वालिटीज़ बताएंगे किसी भी पर्सन की तो हमें एंड यूज़ करना है. एंड वी विल यूज़ टू एडजेक्टिव्स यूजिंग एंड. ओके, तो ये हम टू क्वालिटीज़ बताएंगे. Now I am a girl, so obviously my friend is a girl, so I will use she pronoun. Boys will use he and girls will use she. अब मैं अपनी फ्रेंड की बात करूँगी तो मुझे सेंटेंस मेकिंग करनी है यहाँ से वर्ड बैंक लेके. She is faithful and hardworking. She is friendly and wise. She is talkative and brave. And the last one, she is intelligent and calm. Clear students? अब यहाँ पे लिख लेंगे एडजेक्टिव्स. ओरल सेंटेंस मेकिंग के बाद आप रिटन वर्क करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपनी फ्रेंड को डिस्क्राइब करेंगे. एंड आपको पता है एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो आप लोग एडजेक्टिव यूज़ करेंगे. दीज ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. और आपने इस तरह से अपनी फ्रेंड को डिस्क्राइब करते हुए, बॉयज़ अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करते हुए ही चूज़ करेंगे, गर्ल्स अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करते हुए शी चूज़ करेंगी और अपने वर्ड बैंक से वर्ड्स लेके टू क्वालिटीज़ के साथ आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एडजेक्टिव्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका होमवर्क क्या है, आपने ये वाला वर्ड बैंक भी स्पेलिंग्स के साथ लर्न करना है, स्पेलिंग्स और मीनिंग्स के साथ. एंड दिस वर्ड बैंक ऑल्सो, ये दोनों वर्ड बैंक आपने प्रैक्टिस के जो हैं एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी सी में जो भी वर्ड बैंक हैं ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं.
and this is your homework. You will complete your work, written work, plus you will learn these words by heart. स्पेलिंग के साथ आपने लर्न करके आपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप डायरी नोट कर लीजिए. एंड इट्स योर डायरी. Do homework plus learn word bank, page number 23-24. We will meet in next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.